Hello and welcome to UPSC Average. Today is the day 9 of 15 days Indian Polity Challenge. We are covering M. Lakshmikant book in the 15 days. Today is the day 9 and today we will cover 6 important chapter that are 3 from the System of Government chapter topic. The very first chapter that we will cover today is State Relation, and then we will cover Interstate Relation, and then Emergency Provision. These 3 chapter we will cover from the System of Government, and then we will move toward the local government. And from the local government we will cover 3 to 2 chapter that are Panchayati Raj and municipalities. So we will cover 5 chapter today. So from the System of Government chapter, the very first topic that we will cover today is the center-state relation. In this chapter we will see legislative relation, administrative relations, financial relations, trends in center-state relation, and notes and references. And then we will move towards the interstate relations. And in this chapter we will cover interstate water dispute topic, interstate councils, public acts, interstate trade and commerce, zonal council, and notes and references. And from the emergency provision chapter, we will cover national emergency, president's rule, financial emergency, criticism of emergency provision, and then notes and references. So these are the topic we will cover today from the System of Government chapter, and then we will move toward the local government chapter. And from the local government we will cover Panchayati Raj and municipalities. So in this chapter we will cover the topic evolution of Panchayati Raj, 73rd Amendment, compulsory and voluntary provision, okay, PESA Act of 1996, finance of Panchayati Raj, reasons of effective performance, notes and references. And from the municipalities, we will cover evolution of urban bodies, 74th Amendment Act of 1922, type of urban government, municipal personnel and municipal revenue, Central Council of Local Government, and notes and references. So let's move toward the very first chapter from the System of Government, that is center-state relation. So here is the first chapter that we will cover today. So center-state relation. This is the introduction part which we will read. Okay. So इसमें हम लोग देखेंगे legislative relation, administrative relation and financial relation. So यहाँ legislative relation, इसमें इसका बॉडी है, ठीक है. ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है और काफ़ी अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को रीड करना है एंड समझना है. सो हियर इज दी 3 पॉइंट्स जो इस टॉपिक में है. ये सारे टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ओके, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में. इसको रीड करेंगे, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स इसको हम लोग इन नोट्स में कवर कर लेंगे. ओके, एंड देन हम लोग मूव करेंगे थर्ड फाइनेंशियल रिलेशन. और इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग उस सारे टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से रीड कर लेंगे और ये सारे टॉपिक्स को नोट्स में ऐड कर लेंगे. ओके, तो ये जितने ही पॉइंट्स हैं इसको आप काफ़ी अच्छे से कवर करना है. ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ओके, सो ये जितने भी पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इन सारे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से हम लोग को कवर करना है.
सो आज हम लोग का डे 9 है, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट हाफ पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। एम लक्ष्मीकांत आधा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ चैप्टर्स हैं जो हम लोग आगे कवर कर लेंगे, जो काफ़ी ईजिली हम लोग कवर कर लेंगे इन लास्ट 6 डेज। ओके, टुडे इज़ द डे 9 ऑफ 15 डेज। सो ये सब चैप्टर है, इन सारे ये सारे टॉपिक्स हैं इन सब चैप्टर में। तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे, ये जो जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल को आप काफ़ी अच्छे से कर लेना, एंड उसको ये सारे आर्टिकल को आप बेयर एक्ट से भी ज़रूर पढ़ लेना। बेयर एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जब आप पढ़ोगे तो ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और एट द एंड आपको नोट्स एंड रेफरेंसेस ज़रूर रीड करना, इट्स मस्ट रीड। तो और साथ ही साथ आप ये सारे केसेस को आप गूगल करके आप ये सारे केस को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो नोट्स एंड रेफरेंसेस जो लास्ट में दिए रहते हैं, काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये इसको हम लोग को स्किप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मूव करेंगे, दैट इज़ इंटर स्टेट रिलेशन। हियर इज द सेकंड चैप्टर दैट वी विल कवर टुडे, इज दैट इज इंटर स्टेट रिलेशन। इसमें जितने भी पॉइंट है, इस सारे पॉइंट्स को आप काफ़ी अच्छे से रीड करना, और आप काफ़ी अच्छे से उसको नोट्स में अपने मेंशन ज़रूर करना। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जितने भी वाटर डिस्प्यूट्स हैं उस सारे के बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया गया, तो आप ये सारे पॉइंट को कर लेना। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स सेटअप सो फार। ओके, तो जितने भी हैं ये सबको आपको काफ़ी अच्छे से रीड करना, और आप ये सारे पॉइंट्स को याद ज़रूर कर लेना। अपने नोट्स में ज़रूर ये सब छोटे-छोटे पॉइंट होता है जो आपको अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना होता है। ये सब प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड द सेकंड टॉपिक, दैट इज़ इंटर स्टेट काउंसिल। ये इसका बॉडी पार्ट है, इंट्रोडक्शन जो भी आप बोल लो, आप उसको काफ़ी अच्छे से रीड करना, एंड देन ये जितने भी पॉइंट हैं आप इसको अपने नोट्स में ये सारे पॉइंट्स ज़रूर मेंशन कर लेना। ओके, देन वी विल सी द इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, उसके बाद जोनल काउंसिल को देखना है। इसमें जो ये सारे पॉइंट है, ये सब पॉइंट को आपको अपने नोट्स में कवर कर लेना है। तो आप ये पूरे चैप्टर का बस एक पेज में आपको नोट्स बनाना है। आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, स्टेट, इंटर स्टेट, जोनल, तो ऐसे उसमें 3 3.55 पॉइंट्स आप ऐड करके नोट्स बना सकते हो। उसके बाद ये जितने भी टेबल है, ये आपको अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करना है, और एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें जितने भी केसेस हैं, आपको काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ना है, एंड गूगल करके उसका पूरा अच्छा से अंडरस्टैंडिंग ले लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड दी आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज़ इमरजेंसी प्रोविजंस। सो हियर वी विल सी इमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप इसको समझोगे तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या है। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, ओके, ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या होता है, इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से आप कवर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या क्या है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो ये जितने भी पॉइंट है आप इसको अपने नोट्स में लिख लेना, और इसको आप एक बार रीड करोगे तो आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये क्या होता है। ओके, इसके बाद ये सारे पॉइंट, जितने भी ये सारे पॉइंट है, आपको इसको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, जितने भी ये आर्टिकल दिए हुए हैं, ये आर्टिकल को आप बेयर एक्ट से कंप्लीट कर सकते हो। ओके, तो ये है इस चैप्टर में आपको ये सारे पॉइंट्स ज़रूर कवर करना है। यूज़ ऑफ आर्टिकल 365। ठीक है, तो ये आपको बेयर एक्ट में देखना है कि आर्टिकल 365 क्या होता है। ठीक है, तो आप उसको फिर वहाँ से पढ़ के अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है,
फाइनेंशियल इमरजेंसी किस तरह का होता है, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगा इस बुक से, तो आप उसको उसको यहाँ से कवर कर लेना। मेनली इसमें इस पूरे सीरीज़ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एम लक्ष्मीकांत को बुक को कैसे कंप्लीट करना, किस पैटर्न में इसको कंप्लीट करना। तो ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, इस पैटर्न से एक सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आप इस ऐसे कवर करोगे तो आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके? सो यहाँ फिर नोट्स एंड रेफरेंसेस, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नोट्स एंड रेफरेंसेस सारे चैप्टर के हम लोग को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? तो ये था हम लोग का आज का पहला 3 टॉपिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से, और अब हम लोग मूव करेंगे लोकल गवर्नमेंट में। उसमें हम लोग 3 चैप्टर देखेंगे, दैट आर पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज, सॉरी 2 चैप्टर्स। सो द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ पंचायती राज। सो आपको ये रीड करना है, ठीक है? इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज, ठीक है? बलवंत राय मेहता कमेटी, इसमें आप पढ़ोगे। उसके बाद आप आगे देखो, आपको ये जितने भी टेबल्स हैं, इसको काफ़ी अच्छे से करना है। स्टडी टीम्स एंड कमिटीज़ ऑफ पंचायती राज, इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया। अशोक मेहता कमेटी, तो ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी कमेटी है, आप एक पेज में A4 शीट में पहले ऊपर कमेटी का नाम लिख लो, जैसे अशोक मेहता कमेटी, फिर उसमें 5 पॉइंट्स अपने से आप पूरा रीड करके जो भी आपको 5 पॉइंट्स निकल के आ रहा है, आप वो 5 पॉइंट्स निकाल के ले आओ। ओके? तो ये सारे कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको आपको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। तो इसमें आप कुछ भी स्किप मत करना, सारे पॉइंट्स को आप काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना। ओके? तो ये है पहला चैप्टर, दैट इज़ पंचायती राज। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड चैप्टर में, दैट इज़ म्युनिसिपैलिटीज़। ओके? सो पंचायती राज में जितने भी ये सारे टेबल हैं, आप ये सारे टेबल को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना, और उसके बाद हम लोग नोट्स एंड रेफरेंसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे के सारे नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है? और नोट्स एंड रेफरेंसेस जब आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते हो, तो जो चैप्टर आप कवर किए हो, उसका आपको एक काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है। ओके? तो हम लोग को नोट्स एंड रेफरेंसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड द सेकंड चैप्टर फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट एंड द लास्ट चैप्टर फ्रॉम द टुडे, दैट इज़ municipalities. Municipalities is the last chapter that we will cover today. Here is the introduction part. Okay, Ministry of Urban, Ministry of Defense, Ministry of Home Affairs, ठीक है? Evolution of urban bodies, historical perspective क्या था इसका, तो आप इस पैटर्न में पढ़ोगे, ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो आप काफ़ी अच्छे से पूरे चैप्टर को समझ पाओगे। ओके? यहाँ पे जितने भी ये एक्ट्स हैं, जितने भी अमेंडमेंट है, आप ये सारे को बेयर एक्ट से आप कंप्लीट कर लेना। जितने भी सेलिएंट फीचर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज़, ये सारे को आप अपने नोट्स में ज़रूर कवर कर लेना। ओके? और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सबको समझाया गया है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना, और फिर ये चैप्टर आपका काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ोगे, तो आपको ईज़िली एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा, और आप साथ में गूगल कर लो या फिर कोई वीडियोज़ देख लो, तो आपको एक बहुत अच्छा आपके पास कंटेंट आ जाएगा एक किसी भी एक टॉपिक का। ओके? तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को काफ़ी अच्छे से कवर करना है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे आगे नोट्स एंड रेफरेंसेस, और जितने भी ये सारे टेबल्स हैं, ये सारे टेबल्स को हम लोग को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है? एट द एंड नोट्स एंड रेफरेंसेस, जिसको हम लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और ये हम लोग का इस तरह से आज का 5 चैप्टर आज हम लोग कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट 6 डेज़ हम लोग का बच गया है। 6 डेज़ में हम लोग आगे का भी सारे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेंगे, और ऑलमोस्ट हम लोग हाफ पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। सो एट द एंड पीवाईक्यूज़ आपको करते रहना है 2013 से,
2024 तक करंट अफेयर्स, पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन साथ-साथ करना है आपको, ठीक है? और एनसीईआरटी भी आप कर सकते हो और मॉक देना आप स्टार्ट कर दो। ओके? सो ओके गाइस, थैंक यू।